कि many people will write what is anarchy, किसके theory दी, क्या theory दी. This will everyone will write, but very few people will correlate it with what is happening in the real world. This is something that I used to do. Now raise your hand first. Yeah. Sir, my question is, sir, how you enhance your answer writing skill in PSI? Because actually it is said that PSI are all wrote same answers, but how you wrote in unique way that you get more marks than others? So I hope that question is for me, right? Yes, sir. Okay, thank you. See, PSI में बोला जाता है कि almost everyone writes the same answer, and it's very similar for other options as well. So to make your answer stand out, you have to be innovative in the way you present as well as in the way you design your content and everything. For example, let's say there's a question on anarchy. So you can talk about the rise of non-state actors, terrorists. इसका current word में वो include कर दीजिए. And वही है कि many people will write what is anarchy, किसके theory दी, क्या theory दी. This will everyone will write, but very few people will correlate it with what is happening in the real world. This is something that I used to do. Second phase में क्या हो गया कि if there's some reference of anarchy in some books that is not usually normally quoted. For example, Manusmriti, it is quoted by political science students, but not that frequently. What is anarchy? Matsyenaya जिसको बोलते हैं. So you can use this reference of Matsyenaya in an answer. ऐसे ही करके ही करना है. Interlink and write. Like if the question is about, let's say, democracy, you do not have to just stick to democracy. Yeah, democracy is the core part of your question. But then अगर आप democracy का present context दे दीजिए, आप how the rise and fall of democracies को relate कर पा रहे with what is happening to the current global world, the COVID crisis and the fall of multilateralism. तो ऐसी चीज़ें करके आप you make your answers multi-dimensional, you give an extra touch and you make your answer stand out a bit. And then there is again the thing about presentation, like how you present it, you underline stuff, you put it in brackets. So these are things that you can do. बहुत हद तक. This would actually be very much be helping you. Thank you. Next one. Can I just add to your Just answer? address just tell your name and then then- address. Sir, I am Nadin sir. I'll add to your sir, I would question. like to ask you, sir, personality, how to build a officer like personality. Like I have noticed you, right from coming, you don't need to tell someone that you are an officer, IS officer. You actually your body language, your speaking skills, all it tells that you are an officer. मैं राजीव सर के क्लास में पढ़ता हूँ सर. एक बार मुझे कमेंट कर दिया था, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा है ना यार, तुम IPS बन जाओगे तो पूरे जिला का पुलिस का बॉडी लैंग्वेज खराब कर दोगे. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. बट यू नो अभी आप सब लोग तैयारी करने आए हो, वो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब है, वो ये कह रहे हैं कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना है. और जब तक आप वो इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा. यू नो आप जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज़ जो आपके साथ रहेगी, बस एक चीज़. और जैसे शुभम ने बताया, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जो लोग आई डिड माई BTech फ्रॉम IIT चेन्नई, ठीक है, इन माई 12th स्टैंडर्ड आई वॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर. एंड इंजीनियर जब आते हैं उनको लगता है बहुत अच्छे फिजिक्स में. ये जो एटीट्यूड होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फीलिंग दैट सुप्रीमेसी, दूसरे को छोटा समझने का और अपने आप को ज़्यादा, ये सबसे बड़ी मतलब इट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन मेक. एकदम इम्पार्शियली आपको देखना है. इम्पार्शियली आप कैसे देखोगे? वाई सी इफ़ यू गो टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गो टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, IAS ऑफिसर्स इनमें सबसे कम रहते हैं, बट दे प्रूव टू बी अ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर. वाई? मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर हेडेड बाय IAS officers and rarely you know they had the services जो core services रहती है उनकी. why what's the reason? उसका रीज़न ये है कि एक डिपार्टमेंट में काम करते करते हमें लगता है हमें ज़्यादा आता है. एंड व्हेन यू बिकम हेड यू आर ऑलवेज बाय टू समथिंग और some other thing. बट व्हेन एन ऑफिसर कम्स फ्रॉम आउटसाइड ही इज़ टोटली यू नो उसके लिए सब कुछ न्यूट्रल है, सब कुछ बराबर है उसके लिए. So he takes a decision which is based on, which is impartial. आप समझ रहे हो? आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है.
आप जो बोल रहे हो, जैसे पहले शुभम ने बताया था, एवरीथिंग व्हाट यू से शुड हैव अ बेसिस। मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि इन इंटरव्यू व्हाई यूपी हैज गुड अमाउंट ऑफ क्राइम, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है, व्हाट इज द रीजन? आप में से कोई बताइए, व्हाट इज द रीजन दैट लॉ एंड ऑर्डर इज सिचुएशन इज नॉट गुड इन यूपी? Corruption, sir, and less employment opportunities in UP and particularly in Bihar also. That's why crime is also. Anyone else? There is a discrimination so that made the hierarchy among the society. Anybody else? मतलब एक नॉर्मल आंसर कोई भी दे सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में खराब क्यों है? Communal violence. और कोई? Supported by political parties. सर यूपी का इलेक्शन डिसाइड कर, मतलब अगर लोकसभा का सीट में पार्लियामेंट 80 सीट्स आते हैं लोकसभा में, तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए यूपी में अगर जो डोमिनेट कर जाता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है एक सरकार बनाने के लिए। तो यही एक रीज़न होता है कि पॉलिटिकली बायस्ड है लोग ज़्यादा। सो वेरी नाइस। बट जैसे आपने बोलना शुरू कर दिया, क्या आपने सोचा कि क्या वास्तव में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब है? अगर खराब है तो किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? हाउ डिड यू गेट टू दैट कंक्लूजन? सर क्राइम रेट ऑफ यूपी इज हाईएस्ट इन इंडिया, 15% ऑफ what is the crime rate? How do you define it? Which is the organization which defines it? सर पुलिस डिपार्टमेंट। Police department is the National Crime Record Bureau. NCRB comes with a report and it gives the the amount of crimes per 1 lakh population. I said UP does not have a bad law and order situation. UP has a very good law and order situation. Why? Because the population that time it was around 79.1, and for Chennai, and you see those dates, it was 265. So, and that is supported by NCRB report, annual report, which is which is published by the government of India. So whatever question you are listening, first think whether it is correct or not. और उसको आप कैसे मेजर करें, कहाँ से आए? How many of you have read the syllabus from the books which are which you get in the market, and how many of you have read from the advertisement which comes from the UPSC? UPSC इसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, वो जैसे कहीं भी कुछ भी मिला, कोई भी क्वेश्चंस मिले, वहीं से पढ़ने शुरू कर देते हैं, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिफरेंट होता है. कैन यू लीव इवन 1% ऑफ योर फेट हैंगिंग just because you were not careful in reading something? When I took the syllabus, exactly मैंने उसको कॉपी किया, इसी में से पढ़ना है मुझे, क्योंकि this is the only document which has been published by UPSC. उसी को देखना है, no other material. क्वेश्चन पेपर आपका अगर आपका ऑथेंटिसिटी नहीं है पढ़ने में कि आपने पढ़ा कहाँ से है, तो आपने एक तो लेवरेज वो छोड़ ही दिया है. आप समझ रहे हो? आप ऐसे कर करके बहुत सारे लोगों में लगता है कि यार मेंस में ऑप्शनल में इतना मार्क्स ले लेंगे कि इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. एट द एंड एक नंबर पे फाइट होती है. प्रीलिम्स में एक नंबर पे कितने कैंडिडेट्स होते होंगे एक नंबर पे, मतलब एक नंबर पे बंदा है और उसके बाद आया 10,000. मेंस में सेलेक्ट कितने होते हैं? हाउ मेनी पीपल आर राइटिंग मेंस नाउ, लाइक एवरी ईयर? तो यार ये भी नहीं पता, देखो वो 3 से 4,000, 10,000, 26,000, 26,000 कितना हुआ? कितनी पोस्ट है लगभग? 15,000. एक नंबर पे 10,000 बोल रहे हो आप, ठीक है. 2 नंबर पे तो भारी हो गया. और 2 नंबर कितने क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलते हैं? एक क्वेश्चन. और एक चीज़ और, जब आप पढ़ लोगे ना पूरा, बहुत से लोग ना पढ़ के गलत बहुत करते हैं. कैसे? उनको लगता है कि पढ़ा हुआ है और फैमिलियर से लगता है, एग्जैक्टली नहीं पता, फैमिलियर से लग रहा है, एंड आप पूरा कॉन्फिडेंट होकर से गलत करोगे. हैव ईदर एब्सोल्यूट नॉलेज, क्विक डिसीजन मेकिंग,
कंफ्यूजन स्टेट में आप रहते हैं ना ज़्यादा देर तक, तो आप गए। यू शुड मेक योर डिसीजन, क्विक डिसीजन मेकर, वेदर राइट और रॉन्ग, उसको करके आगे निकलिए, क्योंकि जब आप गलत करोगे देन यू विल कम बैक, इट विल बी लर्निंग। जैसे शुभम ने बोला कि 2 साल मैंने वेस्ट किए, वो 2 साल वेस्ट नहीं किए, दैट वाज द लर्निंग विच ही विल रिमेंबर थ्रू आउट हिज लाइफ। और यहाँ पर आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है। आप अभी आए, आपके पास एनर्जी बहुत है, धीरे धीरे क्या होगा ना, आपके पास एनर्जी बहुत है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं ना, कि आपके पास में एनर्जी बहुत है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, धीरे धीरे वो डायरेक्शन आ जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, और लास्ट में ना एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी, बट डायरेक्शन इतनी परफेक्ट होगी, आपने थोड़ा भी एफर्ट किया, यू विल मेक इट। और सबसे पहले, हाँ, डिड यू राइट एनी आंसर फॉर मीन्स? अब आप बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा आंसर मैं कैसे लिखूंगा? फर्स्ट लर्न टू राइट अ एवरेज आंसर। आप ज़्यादा इनोवेटिव के चक्कर में जो मेन कंटेंट है उसका ना, वो भी वी थिंक वी विल डू दिस प्रिपरेशन दैट प्रिपरेशन, एट द एंड इतना खराब पेपर जाता है, उस पर भी बंदे सेलेक्ट होते हैं, जो आउटकम और जो आप सोचते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि प्रेशर जब आपको पड़ता है ना, क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही गंदे क्वेश्चन लिखे जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू राइट इवन अ एवरेज आंसर, आप बहुत अच्छे के चक्कर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी टर्म्स हैं आपके सिलेबस में, यू शुड बी एबल टू डिफाइन इट। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और हर एक वर्ड को या हर एक डेफिनेशन को अगर आप एक लाइन के अंदर नहीं समझा पा रहे हैं ना, इसका मतलब आप क्लैरिटी नहीं है आपको उसकी। एक लाइन में यू शुड बी एबल टू मेक इट क्लियर, दिस इज दिस। What is economics? Economics is the study of the economy. And there are two different words, economy and economics. 2 लाइन से करो। Anybody can define economics here? Sir, it is an independent subject. खड़ा होकर बाकी भी सुनेंगे फिर। It is an independent subject under which economic activities are studied. What you cannot use that word to define that. आप इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक यूज नहीं कर सकते उसमें। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट्स ये व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज पॉलिटिकल, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज हिस्ट्री, आप समझ रहे हैं? आप अभी जैसे आई वाज इन अ फंक्शन फॉर दिस IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो people use this surrogate mother. What is surrogate? Surrogate, sir. When the actual mother is unable to provide uterus, comfortable uterus. You define it. You as an administrator, these answers as an administrator, you should speak less, and within those less words, you should be able to define it perfectly without any doubt. Economics is a discipline which addresses issue of scarcity. What if we just say demand and supply? Demand and supply are very very small things. आपकी सिर्फ स्कार्सिटी को एड्रेस करने के लिए इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन है। जैसे आपका मेडिकल साइंस क्यों है? Address diseases and treatment. हर एक डिसिप्लिन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। हर एक डिसिप्लिन। तो गो बियॉन्ड, आप बोल रहे हैं अलग लिखना है, सबसे पहले उसको समझिए। अगर आप समझेंगे नहीं, एवरीबडी इज लिसनिंग द सेम, बट अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग है, और आपको जो आउटपुट आएगा ना आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। सो अगर 100% सबने सुना, एक ने 40% समझा, एक ने 50, एक ने 60, फिर आपका जो आंसर आएगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, 40, 50, 60। अब आपको सोचिए हर आंसर में ऐसे ही होगा, आपका फाइनल स्कोर 50-60 में तो पूरी मेरिट खत्म हो जाती है, मतलब फर्स्ट रैंक से लास्ट में 50-60 आई थिंक 60-70 यू कैन नॉट। और एक चीज़ आप खुद एक क्वेश्चन रोज पूछिए अपने आप से डेली, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर IAS, मतलब IAS अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो अगर आप कलेक्टर बनेंगे तो आपको कैसा होना चाहिए, वेदर यू आर फिट टू बी ए कलेक्टर और नॉट।
ये क्वेश्चन रोज पूछिए एंड यू शुड बिहेव लाइक अ कलेक्टर, यू शुड बिहेव लाइक अ डेप्यूटी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अ डीसीपी। क्योंकि अगर आप उसको, अगर आपको खुद ही लग रहा है, जैसे somebody asked me like he appeared for interview, came to me, उसने पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तैयारी में क्या गड़बड़ हो गई है। तो मैंने उससे पूछा आर यू कन्विंस्ड कि आप कलेक्टर बनने लायक हो या मतलब पूरा आईएएस बनने लायक हो अभी, मतलब आपको लग रहा है कि अब आईएएस कोई कमी है आपके अंदर? तो ऐसा कि अभी मुझे नहीं लगता है। तो मैंने बोला सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करो। अब मेरे पास पूछने हैं, पहले अपने आप को कन्विंस करो, उसके बाद अगर नहीं होता तब मेरे पास में हो। अगर आप अपने आप को नहीं कन्विंस कर पाए ना, किसी को नहीं कन्विंस कर पाओगे, और अपने आप को अगर आपने कन्विंस कर लिया फिर सबको कन्विंस कर दोगे। डोंट लुक फॉर वैलिडेशन। सबसे पहले अपने वो बॉडी लैंग्वेज जो बताई उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि यू आर सपोज व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर ऑफिस यू आर सपोज टू बी लाइक दैट। आप समझ रहे हैं? पर्सनैलिटी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने जो बोला बोला, जो आपने करना है वो फिक्स होना चाहिए। उसका कुछ आपको अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसके पास जाएंगे? एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो समझदार है, आपको समझाता है ठीक से और क्रिस्टल क्लियर है। दूसरे व्यक्ति के पास जो कंफ्यूज भी है, उसको पता भी नहीं है। खुद बताइए। और देखिए जो टीचर था, टीचर का जो स्टेटस होता है वो भगवान से भी ऊपर होता है। जो अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आप छोड़ दीजिए। फिर अगर जितना कंसंट्रेशन आपका अपने टीचर पे, मतलब जो अपनी फैकल्टी पे होगा, कंसिडर देम गॉड, जब तक वो गलती ना करें। I personally believe in one principle, either trust absolutely or do not trust. So trust absolutely till your trust is not broken. Because if you do not trust completely, तो फिर आपको आउटपुट खराबी आएगा। लेकिन आपने अपना 100% ट्रस्ट दिया है, तो या तो आपको एक अच्छी लर्निंग मिलेगी और या फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन आपको बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, फैकल्टी जो बोल रहे हैं। और सबसे पहले ना वो अपने आप को कन्विंस करिए डेली, देखने की कोशिश। मीट पीपल। आज यूट्यूब, अगर आप, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद कंप्यूटर्स, विकीपीडिया वगैरह देख लेते हैं सब कुछ? सब। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका आंसर ढूंढ सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर दे दिया गया है। एनी प्रॉब्लम, अगर एक भी बंदा है जिसको दिक्कत होगी ढूंढने में, मतलब आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको कुछ भी, मैंने क्वेश्चन पूछा, किसी ने भी पूछा, आप उसका आंसर ढूंढ लेंगे? एवरीवन। So it depends on which type of problem. वेरी गुड। If you cannot find solution to a problem, then you should think seriously. You should not be a genius. आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। और मैं बोलता हूँ कि एज एन ऑफिसर मैं देखता हूँ कि हमें बहुत ही कम आता है, हर एक फील्ड के बंदे के पास जाएंगे कुछ ज़्यादा आता है। लेकिन आपको हर समस्या ढूंढने का तरीका पता होना चाहिए। हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू डिफाइन इट। उसके लिए विकीपीडिया रोज़ देखिए, रोज़ पढ़िए। कोई भी चीज़ आपको मिली, कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर होता है, लोग रोज़ पढ़ते हैं उसको डेली, 10 दिन तक पढ़ते रहेंगे, 1 महीने तक ये क्वेश्चन रहता है। जिस दिन क्वेश्चन पेपर होता है, शाम तक नेट से एक चीज टर्म खत्म हो जाना चाहिए। वो नेक्स्ट डे तक आपके पास में एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता है। और जब आपका एग्जाम आए ना, तो तब तो सारी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पेपर से याद हो जाए। ये सिलेबस याद देखते नहीं है लोग। क्वेश्चन पेपर लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चन पेपर कब देखते हैं? जब पेपर आने वाला होता है। सबसे पहले वो देखिए। डोंट रीड द आंसर्स, अंडरस्टैंड व्हाई अ क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड। ट्राई टू एक्सेस द माइंड ऑफ द, एक हम पढ़ते ना, द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, दे हैड अ सेट ऑफ माइंड। सो व्हाट दे हैड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी कि उनके दिमाग को हम झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यू हैव टू एक्सेस द एग्जामिनर्स माइंड कि वो क्या पूछना चाह रहा है। एंड आई विल टेल यू, यू विल नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आस्क्ड। आपका जब सिलेक्शन हो रहा होगा ना, सिर्फ एक व्यक्ति को जिसको पता होगा सिलेक्शन हो रहा है, वो आप खुद ही हैं। आपकी तैयारी खुद डिफाइन करेगी। Was I able to answer you? और लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे
क्वेश्चन तो होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं पूछे जा रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है। सुपर 30 मूवी कितने लोगों ने देखी है? फेवरेट? आज जाके उसमें देखिएगा, उसमें एक सबसे काम की चीज़ बताई गई है उसमें कि जो वो सीखते हैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई जो करना है, जनरल स्टडीज़ में वो करना ही करना है। अगर वो ये आप नहीं कर पाए ना, आप सेलेक्ट हो ही नहीं सकते सर्विस में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इन्फ्लेशन की घटने बढ़ने से कैसे जीडीपी इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्या है, वाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, बाकी इंडिकेटर्स को क्यों हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं? हैव दोज क्वेश्चंस। न्यूज़पेपर में आपको एकदम समझ में आना चाहिए, एक कंपनी ने ये डिसीजन लिया, उसके डिसीजन से पता लग जाना चाहिए वो क्या सोच रहा है। Are you getting me? When you are able to predict कि अच्छा ये होने वाला है तो अब ऐसा होगा, आप एक स्टेप अगर आगे नहीं रह पाएंगे ना, that is about life, not about this GS पेपर। हर एक सब्जेक्ट का वही है। और एथिक्स का एक पेपर आता है जो सब बहुत लोग परेशान होते हैं, जब से एथिक्स आया ना लोग मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एथिक्स का लोगों से पूछने की ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, यू शुड थिंक योर सेल्फ, आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, क्या प्रैक्टिकल है, और वही आंसर होगा। जब आपको आंसर वो सही आने लगेगा ना, तब आपको समझ में आएगा आपका मेंटल जो फ्रेमवर्क बन गया है सिविल सर्विसेज के लिए। क्योंकि आप एज ए ब्यूरोक्रेट आप क्या करोगे जब वो आपके आंसर से मैच होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स यू आर ऑन द वे। और आपके पास जो मेंटोर्स बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और यूट्यूब पे जैसे शुभम ने बताया कि आप जाओगे, आपको यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि क्या होना है क्या नहीं होना है। एंड वन थिंग, यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग अराउंड। आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो ना, यू विल एंड अप लाइक नियर देम ओनली। वी वर अराउंड 22 group, and I always tell it very, I have a very fond memory. I was from IT, 22 लोग हम लोग तैयारी करने आए थे यहाँ पे, जो we were preparing, and in due time, like some from IT Delhi, कुछ IT Bombay, IT Madras, कितने लोग सेलेक्ट होंगे सोचो आउट ऑफ 22। और इसमें ये भी होता है कि कोई बंदा IT अपने क्लास से टॉप करके आता, होता भी नहीं सिलेक्शन, ये भी होता है। और आप बहुत ही मीडियोकर कॉलेज से आए ना और आपने बहुत अच्छा कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर में गलती है, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसने मेहनत करी इसलिए हो गया, उसने मेहनत या डायरेक्शन कुछ तो गड़बड़ हुई है, नहीं हुआ। आउट ऑफ 22 हाउ मच वुड बी द सिलेक्शन रेट, व्हाट डू यू थिंक? 50%? नहीं, हो गया आउटपुट तो पता है ना मैं, तो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गिव अ गेस। ऑल 22 गोट इनटू सर्विसेज, कुछ IAS में, कुछ IPS में, कुछ IRS में, बट ऑल ऑफ देम मेड इनटू सर्विसेज। और ये एक गलती जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स कुछ नहीं लिए थे, फिर छोड़ के उन्होंने पकड़ लिया। वी डिड एन एनालिसिस, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज। रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज मतलब हर एक ऑप्शन से उतने ही चांस हैं, आप किस में कंफर्टेबल हैं ये आप देखिए अपने हिसाब से। और आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे ना सब्जेक्ट से, यू हैव टू थिंक फ्रॉम दी आउटकम पर्सपेक्टिव कि कितना एफर्ट मैं डालूंगा और कितना आउटपुट आएगा। क्योंकि आपके साथ वाले बंदे कम एफर्ट मार के अगर ज़्यादा नंबर ला रहे ना, तो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर यू। आई थिंक इसमें काफ़ी बड़ा मैंने वो भूल गया। आपने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ो तो सब समझ में आते, तो हमारा डिलेमा रहता है कि कुछ बेसिक्स पढ़ लें तब न्यूज़पेपर पढ़े या न्यूज़पेपर ही स्टार्टिंग से शुरू करें। मैंने तो ये बोला ही नहीं, मैंने तो बोला न्यूज़पेपर तो शुरू के 4-5 महीने पढ़ने ही नहीं चाहिए। उसका रीज़न मैं बता दूँ क्यों। कितने घंटे पढ़ते हो आप? 4 to 5 आवर्स इन अ डे। कोचिंग के साथ ही कोचिंग से आई एम राइट नाउ इन 3rd ईयर। फिर भी कितना 4-5 घंटे आप निकाल लेते हैं। न्यूज़पेपर कितना टाइम पढ़ते हैं उसमें? राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, आई एम जस्ट। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है अभी? मुझे लग रहा है पहले ही सब लोग स्मार्ट है। कितना, कौन सा न्यूज़पेपर? हिंदू? कितना टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में? 40। सबसे पहला काम न्यूज़पेपर पढ़ने के करते होंगे, है ना? फर्स्ट वर्क। और कौन पढ़ता है? No, not first. Whenever
मतलब आप सबसे पूरे मतलब इवनिंग में पढ़ते हैं या मॉर्निंग में पढ़ते हैं? No, whenever I get time, like breaks between my classes or in the evening or anything. It takes at least 2 hours. 2 hours. ही इज डूइंग इट सिंसियरली, तो मुझे पता है 2 घंटे। 2 घंटे में पढ़ के उसको क्या मतलब, जब आप पढ़ लेते हो 2 घंटे पढ़ के आपको लगता है कि कुछ समझ में आया? उसको रिवाइज तो नहीं करते पर ऐसा लगता है कि कुछ टर्म्स कुछ अच्छा लग रहा है। अगर न्यूज़ देख लेंगे उसकी बजाय 5 मिनट की, क्या वो दोनों बराबर हो जाएगा? न्यूज़पेपर ज़रूरी है। न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते हैं पूरा एक एक वर्ड समझ में आता है उसको, मतलब या फिर गूगल करना पड़ता है। गूगल करना पड़ता है। आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं ना, 4 घंटे में भी 2-2.5 घंटे आपका इनोवेटिव टाइम होता है शुरू का, उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। पूरे दिन में 2 आपके सेशंस निकलते होंगे, एक जब आप उठते हैं, फिर आपने फिर थोड़ा सा आराम लिया, फिर एक इवनिंग का 2 सेशंस, और हर एक सेशन अगर मैं 3 घंटे का मानता हूँ 6 आवर्स। उसमें से अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए, सबसे पहले ना आप अपना बेसिक करो। बेसिक्स अगर आपको नहीं समझ में आएगा, भाई इकोनॉमिक्स ऑफ जीडीपी क्या है, व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, एंड तक लोग गलती करते हैं कि जीडीपी में और जीएनआई में, उसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एंड तक, और उसे पढ़ते भी रहेंगे पूरा। आपका सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, व्हाट इज सेंसेक्स। लोगों को ये नहीं पता होता, बहुत लोगों को, कि ये शेयर मार्केट में कि सामान बिकता है या कंपनी के शेयर्स क्या होता क्या एक्चुअली में। आई एम टेलिंग वेरी बेसिक थिंग्स। अगर कोई भी, आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन इन इंटरव्यू, मेरा बोर्ड पुरुषोत्तम दास उनका बोर्ड, अगर आपको एक इलिटरेट बंदे, गांव के बंदे को समझाना पड़ेगी व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, आप कैसे समझाओगे उसको? तो ये ऐसे हथियार डाल दिए, पहले लड़ने की वो थोड़ा कोशिश करो उसमें। व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर इन दैट सिचुएशन? यू आस्क मी एनी क्वेश्चन, इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर। You should be able to deliver a best possible answer. You're not supposed to give the correct answer, the best practical possible answer in that scenario. Engineer? You're an engineer? Yeah. So how will you make a common man understand what is nanotechnology? That which he can't like actually see, but is the most important thing. Like I gave this answer. It is a technology which will give you potable water. Potable is, which you can drink. एक साफ पानी आपको दे देगी टेक्नोलॉजी, खत्म हो गया। उसके समझ में आ जाएगी, ठीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मुझे पीने के लिए पानी मुझे दे देगी। क्या इसका और भी आंसर हो सकता है। और आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से सोचिए, आप कलेक्टर आपसे अगर किसी ने पूछ लिया, आपको जन गण मन, आपको नेशनल एंथम आता है पूरा, आप अगर अंदर ही अंदर सोचेंगे ना पूरा मुझे आता नहीं आता, अभी डाउट हो जाएगा आपको। आपको पता होना चाहिए एक एक वर्ड आपका, योर नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, दीज आर योर बेसिक्स। रीड अबाउट पीपल, जितने ऑल द पीपल हु हैव गॉट भारत रत्न, रीड अबाउट देम। It is always about people. When you actually read about someone, then you will get to know कि यार how do you achieve success. अब डिसिप्लिन पर मज़ा नहीं आएगा। Try to read in the form of stories. Story you never forget. पहले उसके बारे में जानो, फिर ये देखो कि यार मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, एनालाइज करो उसको, प्रोज कॉन्स, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आप एक टॉपिक पकड़ो, डिस्कशन करो। डिस्कशन इज़ वेरी गुड। आप कुछ फ्रेंड्स हैं, आपस में इसका ये होगा वो होगा, लड़ना नहीं है उसमें। ट्राई टू गिव योर वैलिड पॉइंट। अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, यू टेक हिज पॉइंट, नहीं लगता फिर आस्क समवन हु हैज़ बेटर नॉलेज। आई थिंक दैट गिव मी द आंसर।
like I'm from commerce, so I had a confusion for optional between accountancy and economics. Okay. So there is a, I think it's somewhere called true, I don't know. Like accountancy is a practical subject. Okay. The answers are very practical. Either it will be right or it will be wrong. Okay. But in economics, it's a theoretical subject and dynamic subject. Okay. So while writing the answers, we have to think to be innovative, to do something different from others, to get selected. But in the practical subject, we are defined like, okay, we have to solve this question, and this question can be solved in a particular time, and it will be correct. So in that context, should we go with that practical subject, like it will fetch good marks and options? See, first of all, choosing optional is, like as I've been telling, it should be based on research and it should be final decision of you. Now let's say कॉमर्स का 500 मार्क्स का पेपर आता है, आपको 500 के 500 मार्क्स पूरे आते हैं, लाइक इट्स एवरीथिंग न्यूमेरिकल एंड एवरीथिंग contextual, like it's not factually opinion based. Do you think you'll be able to score 500 out of 500? Do you think will you be getting 500 out of 500? No. Even if you solve all questions, the marking, the pattern and everything would not get you 500 out of 500. There are many reasons. Okay, because sometimes it's not just about the way you have solved, the answer that you get. It's about the way that you have taken. If someone gives in better way, if someone does not make any sort of, let's say you do not make even a single error, there might be issues with the presentation. You might end up with 350, 360 as well. Then there can be scaling up and down. This is something that will come very later in part of your presentation. अभी तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इसके. So you cannot actually decide an optional based on the fact that it is factual. इस हिसाब से every engineer must be taking chemistry, physics and maths, because maths में it's either plus 10 or 0. But things does not work in that way. ठीक है ना? It's not like बोलते हैं ना life में, it's not about black and white. It's about the grey things in between. You do not like, अगर आप लोग का option, it can happen to anyone. If you write a politically, even if for someone in social sciences, you are writing a politically relevant answer. For example, role of judiciary in the current times. Number one, there cannot be any correct answer to this. Let's say you find a hypothetical correct answer which fits exactly what is being asked. Let's say, there's no guarantee that you will be getting full marks for it, because the truth can be said in many ways. Similarly, facts can be represented in many ways. You might have used a method to calculate stuff, right? A proper detailing or a tabling method, but someone might use some other method. Okay, so there's no guarantee you solving every question with the right method will give you full marks. There can be a fact that you might not be getting 6 or even 7 in some questions because the examiner did not like your approach. And this is a very much true. It happens in questions like mathematics. Even the best people in mathematics, like as far as my memory goes, even since one optional system has been introduced, the highest marks that I've heard in an optional was at around 362 or 365 out of 500. Even if the person leaves 130, 135 marks, do you think he has scored 365 out of 365? No chance. And that person was from mathematics. He's a former all India topper. ठीक है, I don't want to take names. Point ये है कि do not base your decision on the fact that if it's a factual subject, तो इसमें मतलब अगर मैं सारे क्वेश्चन सही करूँगी तो मुझे full marks मिलेंगे. It is not your school board exams. There are a lot of things that people look into. There are a lot of ways of presenting answers. Answer writing पे जब आप आओगे, you'll understand how and why presentation is important. एक अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट आप दोगे, you realize कि content wise मैं ready. Same content पे आपको 120 मिलेगा out of 250, इसमें 70-80 मिले. Because why? शायद presentation अच्छा हो, शायद आपने ऐसा special orientation दिया हो आंसर को, कुछ current affairs से relate कर दिया हो, कुछ डेटा फैक्ट्स फिगर्स दिया हो, कुछ पर्टिकुलर लेट्स से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेंशन कर दिया हो, which you guys quoting and कॉमर्स की भी यूज राइट. तो आप मतलब it depends on n number of factors. We do not know what's happening inside while papers are being checked. So do not base your decision on the fact that the commerce is a non-subjective subject. इस चीज में मतलब सही क्वेश्चन होगा प्लस 10. No, it's a black box. You are putting your thing inside. What's coming out, it's beyond your control and you do not even have an idea of. So this should not actually be a criteria. वरना इस हिसाब से तो सब कोई लगेगा कि मैथ्स तो सबने पढ़ा हुआ है जीवन कहीं ना कहीं. सबके मैथ्स नहीं लगते हैं. तो उसको सही करेंगे तो प्लस 10. ऐसा कोई एक टारगेट करें कि सही करते हैं. But this does not work. वैसे नहीं. ठीक है. I hope I have answered it. Any more question? This is your opportunity. You can ask question.
can understand this examination. How to main Consistency. See, maintaining consistency. Keep peaceful. See, I tell you what I used to do. Like there were times when I did not feel like studying. Like there were times when I felt that my output wasn't that good. So I used to take breaks. I used to indulge in some sort of activity. For example, I liked playing video games and I liked watching football. या jogging type का तो at one point of time I was into some activities like powerlifting and all. So मैं वो करता था. It's very much individual what you want to do, what you want to do. But at the same time ऐसा ना हो जाए कि like वो आपने memes देखा होगा कि like this when you take a 5-minute study break and it lasts 6 months. लेकिन वो नहीं होना चाहिए. और जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि you should be motivated enough from the एक ड्राइव होनी चाहिए. मैंने वहाँ पे बोला था कि ये सर भी बोल रहे हैं आपकी UPSC preparation is not about what you're reading in your notes. It's about how you're observing life, how you're observing things around you, what people are you meeting, how you're understanding things. ठीक है ना? And this is what should actually be motivating you. Like that बहुतों का recent service join करने का अलग-अलग होता है. I'll tell you a very personal example. मेरा 3 बार से लगातार 3 साल से means नहीं किया था. There were lows. There were definitely lows. I used to talk to maybe people, friends, my love and dear ones. But then I always knew that मेरे पास एक opportunity चाहिए because I know I can be there and I can make an impact. So that must be there. Sometimes it's a very normal feeling low. But then there must be that voice in the back of your head जो आपको बोलते रहे कि नहीं मैं वहाँ जा सकता हूँ मुझे करना है मुझे जाना है just believe. So this is how you become consistent. Breaks to enjoy the process. मतलब it's just an exam, it's to enjoy करिए. Main ये है. Because do you think आप IAS बन गए and life get becomes easy? Ask me. I'll just be entering like my foundation course from the end of August. मेरे दिमाग में इतना से ख्याल नहीं है कि अब मतलब ये दुख भरे दिन भी तो भैया आप सुख भरे दिन आए हुए. Life doesn't get easy. You get tough. यही चीज़ है. This is what will make you consistent. कोई और सवाल है? तो I think yes. Is there any social media platform? Yeah, I have my social media platform, and in fact, I will possibly you and you can share. Sure. Sajid Kumar IAS के नाम से मुझे एक और I am there on Facebook, LinkedIn, as well as Instagram. I just really Which team are you taking? Merit is like you have taken admission or you just took your 12th exam? You have joined your college or you just applied for your 12th exam? See, it is too early I would say that, because your graduation is a process you should enjoy. Like he said, very important thing, you should enjoy while you do it. अगर आपको मजा नहीं आ रहा ना मजा इन द सेंस कि इट इज लाइक योर एवरीडे आप पढ़े आपने यू नीड टू वेंट आउट दैट एनर्जी हैव डेवलप द फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक एटलीस्ट 45 मिनट्स ले वॉक ले जाओ ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा थकते वहाँ पे मतलब नई फिजिकल एक्टिविटी आप थ्रू चलती रहेगी आप दैट विल हेल्प यू कीप योर फोकस मेज के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा फिर आप स्टार्ट करो उसको अभी इट इज टू अर्ली आप अपना सब्जेक्ट डिसाइड करके ठीक है जो मैंने बताया था आप यू नो अबाउट यू हैव लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली यू हैव टाइम पीपल हु हैव जस्ट डन देयर ग्रेजुएशन उनके पास टाइम नहीं आप पहले सिस्टम को समझो जो मैंने बताया सर्विसेज क्या क्या हैंडल किए आपकी 90% यस आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे इस बार का प्लेस पेपर देखा सकते हैं NFT का क्वेश्चन क्या लोगों ने NFT क्या मतलब होता है क्या मतलब होता है digital representation of that fungible का मतलब क्या होता है fungible can be converted to other types अब जैसे मैं पहले बोला था ATM कैसे समझाएंगे fungible जो तुम दूसरे में बदल सकते हो fungible है that's what I एग्जांपल दीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आती उसके एग्जांपल से आपको समझने की कोशिश करो तो आराम से समझ में आ जाती है money currency is fungible because it can be traded and converted to other goods
currency can be converted, which other thing can be, which are the other thing other than currency which are fungible? करेंगे अब मैं बताने वाला हूँ। मैं 50 से 2 नोट दूँगा और आप मुझे 100 रुपीज़ दे देंगे, 100 रुपीज़ एक नोट। ये फंजिबल हुआ, नॉन फंजिबल हुआ? इट इज़ फंजिबल। अब 50 से 2 नोट देने के बाद में मैंने 100 लिया, ये फंजिबल है। ये समझ में आया, पहले वाला समझ में आया था। और जब मैं 250 के नोट दे रहा हूँ और 100 मुझे देंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि बराबर नहीं है, तो नॉन फंजिबल हो गया। यानी कि दो चीज़ें जो सेम सी नहीं है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उस क्वेश्चन में नॉन इक्विवेलेंस है, उस एक वर्ड से अगर आपने फंजिबल का मतलब पता है, उस एक वर्ड से इक्विवेलेंट किया जा सकता। काफ़ी क्वेश्चन था, आप पूरा पेपर तैयारी करेंगे ना और आज पेपर उठाएंगे और तब उस क्वेश्चन को वही फीलिंग रहेगी, पता नहीं जब आज भी बनाता है। लर्न, इसको पढ़ो ठीक से, हर एक चीज़ का मतलब वहीं में छुपा होता है। जैसे ब्लॉकचेन है, व्हाट इज ब्लॉकचेन? हेलो, व्हाट आई एम टेलिंग यू, हर चीज़ को ब्रेक डाउन करो, आराम से समझो लेमन की टर्म्स में, क्योंकि लेमन की टर्म्स में जब आप समझोगे तभी आप समझा पाओगे, तभी आपको समझ में भी आएगी। और चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं एट द एंड, आप धीरे धीरे ब्रेक डाउन करोगे, दे आर वेरी सिंपल। और ये जो जैसे क्वेश्चन है ना कि कौन सा ऑप्शन चाहिए, आप बैठो उसकी पेपर सिलेबस लेके क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व करके देखो, ठीक है, किसी और से चेक करो कि टेस्ट सीरीज है। आज की डेट में तो नेट पे बहुत सारे जोड़ ऑप्शन आप करके देखो कि यार मैं ये वाला आंसर लिखूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलता है, वो ऐसे नहीं होता। डोंट बी सीनियर, थर्ड ईयर, जैसे यू आर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जूनियर कॉलेज, यू फाइंड सीनियर, आप दोबारा से लिख के जब आप सिंसियरली काम करोगे ना तो आपको हर समय लोग मिलेंगे। जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, आप काम नहीं करोगे ना तो वो क्या ये बार-बार से पूछ लो क्या करता है, कुछ नहीं। Do something. When you do something, you will experience it, and with experience, there will be learning. It's a feedback. Human species is the only species among 33 million species which have the capability of getting feedback, and that's why we have, accelerated our evolution. मैंने अपने evolution को बढ़ा दिया है। बाकी सब कोई भी जानवर है उसकी एज बढ़ती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि एज बढ़ रही है। ह्यूमंस होते हैं कि हाँ एज बढ़ी है, चलो मैं आई शुड गेट मोर फिटर, या मैं बीमार हूँ स्टेज में लेता हूँ। कोई बीमार होकर मर जाएगा अगर उसको ठीक नहीं किया। ह्यूमंस के जो उसको ठीक कर सकते हैं, दैट इज फीडबैक। आई विल बी शेयरिंग आवर क्रेडेंशियल्स, so think over and you can post your doubts. Everybody there, social media पे lot of information is available, but excess information is available. तो filter out करना, so that is also a test. अगर आप कोई filter नहीं कर पा रहे हैं, it is testing you every second, every moment. अगर कोई आउट पता बचा हो तो बाद में घर पे जाके सोचोगे कि अच्छा ये सवाल पूछ लेता मैं तो। It's an opportunity, right? You ask, Is how life changed before and after entering this service, I guess. Technically, I haven't entered the service yet, so I don't think I'm the right person to answer this. But life changes a lot. जो आपकी फाइट आजकल चल रही है, ये फाइट तो ऐसी कि it will go to another level. वहाँ पे भी फिर ऐसे ही चलता रहेगा, but you get into another race. आपकी इशू सब कुछ वो बदल जाएंगे। हो सकता है कि जब the issues which you are having with respect to your counterparts वो उससे थोड़े नीचे चले जाए, but you will have some good standing in society. लोग आपकी बातों को मानेंगे। And the best thing, अभी आपको लग रहा है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। The best thing you will get is the recognition you will get. That is one thing you cannot earn so easily. जो आपको सर्विसेज में the moment you get selected, आप एकदम बुद्धिमान बन जाते हैं, सब आपकी बात मानने लगते हैं। You get that credibility. उसको आप enjoy करना चाहते हो, आप वो खराब लगती है। That is again new personality specific, but आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जान लो पहले सिस्टम अंदर कैसा है, क्योंकि ये जब
GS your all the question papers, they are making you learn what is the system, how to move into the system, how to solve your problem. Average person also solves his problem, and administrator solves other person's problems. Only the person who is capable of solving that problem in a better way will get a chance to become an administrator. क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो बाकी क्या कर पाएंगे? तो पहले तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सक्षम होना चाहिए। और ये जितने क्वेश्चन पेपर दे आर जस्ट डिसीजन मेकिंग। Every question is testing. Every question, everything is testing your analytical ability. Yes, no, yes, no, yes, no. करूँ ना करूँ। और वो छोड़ने का काम चिड़ी मार होता है। तो अगर आपने गिव अप जल्दी से मार दिया तो कुछ नहीं है। You have to keep on. आप बार बार you will see defeat. जो लगा रहेगा वो एंड तक पहुँचेगा। And one more thing. कुछ लोग होते हैं बहुत ही नेगेटिव फीडबैक देते हैं। आप जाएंगे अच्छा तुम 4-5 साल लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये बिल्कुल तुम तुम्हारा हो सकता है। Try to meet people who are positive. You need lot of positivism in this